Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss this Code Forces 807 Div2 round problems. And if you are new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post this new video. So let's start with the problem A. And so Mark is asked to take a group photo of 2n people, the ith. So you could read the problem out. There is no point of reading it to me. So basically what is asked in the problem, like you are given this 2n size array and you have to like reorder it in some way. Like if like you reorder it, let's say this is your a1, a2, a3, a4. So you have to reorder it in two sets, let's say a1 and a2 and a3 and a4, such that the differences of them is greater than or equal to x. It should be strictly equal or greater than x. So the optimal way or the best optimal way of arranging these all numbers would be, if you think it logically, like first of all, if you sort this array out and then you rearrange the lowest number in front of the I plus n by 2th number. What I meant to say, like let's say you are having this array 5, 17, 18, 20, 16. So let's 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Let's say I'm taking these 8 numbers. So now if I sort this array out, so what would be my resultant array? It would be 1, 5, 12, 16, 17, 18, 19, 20. This would be your array. So what could be the minimum number that should be, मतलब इसके आगे मैक्सिमम नंबर ऐसा कौन सा रखें कि इसके लिए भी कोई शॉर्टेज ना हो. So like you have to put the maximum number out in front of the n by 2th element. अगर 16 के आगे उससे छोटा कोई भी नंबर रखोगे, let's say your x is 3, तो तुम्हें यहाँ मिनिमम 19 या 19 से बड़ा रखना था. सो यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज आउट कि तुम सबसे जो n बाई टू एलिमेंट है उसके आगे सबसे बड़ा वाला एलिमेंट रखो जो कि n बाई टू डिस्टेंस बाहर है. ऐसी द सिमिलर वे यू विल पुट द एलिमेंट 12 इन फ्रंट ऑफ 19. ऐसे ही तुम 5 के आगे 18 रखोगे. वो क्यों रख रहे हो ऐसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सिमिलरली यहाँ से जा रहे हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो तुम्हें बस यही करना था कि सॉर्ट करके n बाई टू के आगे n बाई टू को रखना था और चेक करना था कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू x. अगर इज लेस देन x हो रही है तो यू हैव टू print out false, otherwise you will have to print out true. So now let me show you the code what I submitted. So ignore the above stuff, it's related to some other question. So I have taken this n and x and vector of 2n, then I'm sorting the vector out and I'm checking like if my absolute of v of I minus v of I plus n. Why I'm doing, like in the problem, like they have given n as n by 2. In the explanation I have taken it as n and then n by 2. Here in the problem n is itself n by 2. So that's why I have declared the vector of 2n size, and if it's true then print yes, otherwise print no. I can show you the test case also. Now let's look at the test cases and let's discuss the time complexity of it too. So first test case is 1, 3, 9, 10, 12, 16, 9, 10, 12, 16, and your 3 and 6. This is your n and this is m by 2, let's say. M is 6 and this is your k or x. Let's take it as. So first you will sort this out. It's already sorted. So now what you will do, you will put it in this way. I के आगे m by 2 प्लस वाला एलिमेंट जो कि 10 है वो रख दिया. 3 के आगे वही 12, 9 के आगे 16. Now I'll check. It's 9 and it's 7. All these values are, मेरे ख्याल से, are greater than x. So I'll print out 2. Now let's check for the second test case. It's 3, 1, 2, 5, triple 2, 5, triple 2, 5. So similarly अब तुम इसे sort करोगे. So you'll sort it out, then you will put this in front of this in front of this, and this in front of this.
So if you will do it so in this way, so you will get 3, 3 and 0, and your x was 1. You can't have any value less than 1. So here it's coming out to be 0. So you'll print out no in this case. So you could run other test cases as well. And the time complexity would be like sorting this array would be n log n. And जो भी तुम ऑपरेशन कर रहे हो ये n में होगा तो it would turn out to be order of n log n only. So that was it for the problem A. Now let's move towards the problem B. Okay, so B was kind of tricky question, but yeah, it was not so much hard. That's why like, a lot of people have submitted it. So now let me tell you what the problem says. So basically, like in a single operation, you could perform these three mini operations. So what are these operations? You could select two indexes, let's say I and j in the array. So this is your ai plus 1, ai plus 2, and whatsoever a j minus 1. So if you select, and you could only select those two pointers as I and j which are having all these values as strictly greater than 0. So then what you can do, you could increase the value at I as ai plus 1 and value at j as aj minus 1. You could do this thing. So now you have to tell कि पूरे array को तुम्हें 0 बनाने में, पूरे array को नहीं, like n minus 1 elements को 0 बनाने में, और जो भी लास्ट एलिमेंट बचेगा x लेट से, कितना टाइम लगेगा, मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे, मिनिमम ऑपरेशंस बताने हैं. तो इसके लिए क्या था, व्हाट आई नोटिस्ड फर्स्ट वाज, पहले तो सबसे अच्छा तो मुझे सेकंड टेस्ट केस लगा. लाइक यू आर गिवन दिस टेस्ट केस, इट्स 0 2 0 2 0. सो इसको अगर तुम देखो ध्यान से, सो एक तरीका क्या होगा, द मिनिमम पॉसिबल वे वुड हैव बीन लाइक, मतलब कि मैक्सिमम या एग्जिस्ट करने वाला तरीका क्या होगा. सिर्फ एक एग्जिस्टिंग तरीका ये हो सकता है कि तुम पहले इस 2 की सारी वैल्यू को इधर ले आओ. एक ऑपरेशन तो कर ही सकते हो चाहे 0 हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी सारी वैल्यूज़, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके तुम यहाँ ला सकते हो. ऐसे ही इसको यहाँ ले आओ, फिर उसको एंड में यहाँ ले आओ. सो इस केस में जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो कुछ ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे कुछ. बट द ऑप्टिमल वे वुड हैव बीन, इफ़ यू हैव नोटिस्ड थ्रू दी टेस्ट केसेस, इट वुड हैव बीन कि तुम जितने भी आगे ज़ीरोज़ हैं, लेट्स से, और तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ है. अगर तुम अपने ये जितने भी नंबर्स हैं 3 के अंदर से, अगर तुम एक एक, अगर तुम 3 से यहाँ पर ले आए इस 1 को, सो अगर तुम्हारा ऐसे हो गया, तो तुम अब दोबारा इस वाले 0 को भी 1 सेट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम में दे रखा है कि ए आई से लेके ए जे माइनस 1 तक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो अब ये दोनों 2 1 भी 0 से बड़े हैं, तो तुम इस वाली वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो और इसको डिक्रीमेंट कर सकते हो. ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा से, ये क्रक्स है क्वेश्चन का. अगर यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू के है और यहाँ पे लेट से देयर आर m zeros, सो तुम m ऑपरेशंस में इन सबको 1 बना सकते हो. सो तुम m ऑपरेशंस में इन सबको 1 बना सकते हो. और अगर तुम m ऑपरेशंस यहाँ कर दोगे तो तुम्हारी k की वैल्यू क्या रिड्यूस हो जाएगी, k माइनस 1 m हो जाएगी, और यहाँ पर 1 1 1 आ जाएंगे m टाइम्स. और वो किस लिए बना सकते हो, वो इसलिए बना सकते हो अगर लेट से इधर 5 था और इधर 4 जीरोस थे. सो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ये 4 यहाँ चला जाएगा. सी आफ्टर दिस सेकेंड ऑपरेशन, क्योंकि अब ये दोनों तुम्हारी एक एरे बन सकते हैं और तुम इन दोनों पॉइंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन 0 है. और ये नोटिस करने का था कि यहाँ पे ये j माइनस 1 है, इट्स नॉट j. तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो गए. ऐसे ही अब तुम इस वाले को 3 करोगे, इसको 1 करोगे, इसको 1 करोगे. अब दोबारा से नेक्स्ट ऑपरेशन में इसको तुम 0 2 1 1 1, अब फिर दोबारा से तुम इसको क्या कर दोगे, 0 1 1 1 1. सो ऐसी तुम्हारी एरे टर्न आउट हो जाएगी. और ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, लेट से अगर यहाँ पर 7 होता तो अभी तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बच रही होती है, यहाँ यहाँ 3 बच रही होती. तो अब तुम इस 3 को डायरेक्ट, अगर यहाँ पर सारे 1 है तो तुम डायरेक्ट एंड वाले नंबर पे ट्रांसफ़र कर देते, ये वाले को भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते, ये वाले को भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते, और तुम्हारे ऑपरेशंस बच जाते. ठीक है,
तो इस प्रॉब्लम में बस तुम्हें ये करना था कि लेट्स से तुम्हारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे कुछ है। तुम्हें A4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो एक A2 जितने भी ज़ीरोज़ हैं बीच में नंबर्स के, उन सब पे 1 1 पहुँचाना है। और एक बार वो 1 1 पहुँच गए तो जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ बचेंगी वो तुम ए के ऑपरेशन में A7 पे पहुँचा सकते हो। Move that value to A7. So basically what this was only for the problem. Now let's have a look at the test cases. So firstly, what you will do, like you will transfer it. Similarly, you will transfer this value. तो अब ये सारी तुम्हारे ये टू ऑपरेशंस हो जाएंगे यहाँ तक। अब तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचाना है, तो ये सम ही पूरा, ये कितना सम है, 4 5 7 8 9, 9 + 2, तब तुम्हारे 11 ऑपरेशंस में हो गया ये। बट अगर तुम ऐसे करोगे कि इन सब वैल्यूज़ पे पहले 1 1 पहुँचाओ फिर काउंट करो, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें बेसिकली बस यही करना है कि काउंट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, काउंट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, प्लस जो भी उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तुम अपने जो भी ज़ीरोज़, लेट्स से ज़ेड आया, तो ज़ेड को सब्ट्रैक्ट कर दो उस नंबर से। लेट्स से तुम पीछे से चल रहे हो, सो तुमने देखा यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो तुम इस वाले में से एक ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू माइनस ज़ेड। तो इतने तुम्हारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग जाएंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए। और तुम ये स्टार्ट करना है n-1 से। ज़ीरो है तो बढ़ाते जाओ, जो भी वैल्यू आई उसको सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, एंड देन ऐड कर दो, एंड देन यू विल बी सॉर्टेड। नाउ लेट मी शो यू द कोड। तो तुम n-2 से चल रहे हो, ये एरे ज़ीरो इंडेक्स बेस होती है, vi इज़ ज़ीरो, देन तो एक्चुअली लाइक इट शुडंट बी लाइक काउंट नंबर ऑफ zeros plus v, not this 0 plus value, and that I wrote wrong. So काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्लस वैल्यू क्यों हो रही है, क्योंकि तुम्हें एक तो उन सारे ज़ीरोज़ को भी तो वापस से वन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर तुम्हारे यहाँ पे 5 था और यहाँ 4 ज़ीरोज़ थे, लेट्स से 7 था, यहाँ 4 ज़ीरोज़ थे और यहाँ 1 था, तो अब इन 7 पे तो तुमने 7 को तो कर दिया तुम्हारा 3 कर दिया, और जो भी ये थे ये सबको 1 कर दिया। तो तुम्हें ज़ीरोज़ को भी तो 1 बनाने के लिए एक-एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली तुम्हें कितने ऑपरेशंस करने पड़ गए, ज़ीरोज़ प्लस ये 7, 7 तो ज़ीरोज़ थे तुम्हारे 4, तो 11 करने पड़ गए। और तुम वैसे भी चेक कर लो तो 11 ही करने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने ज़ीरोज़ को तो कन्वर्ट कर दिया यहाँ, वो तो तुम्हारा रिड्यूस हो गया, बट एक तो उसको कन्वर्जन में जितने ऑपरेशंस लगे वो, प्लस उन ज़ीरोज़ को भी 1 में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशंस लगेंगे वो, तो उन दोनों को काउंट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन हियर, कि मैंने आंसर प्लस इक्वल टू 0 प्लस vi कर दिया और एंड में 0 को 0 सेट कर दिया, क्योंकि आगे वाले नंबर्स के लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये तब हो रहा है जब तुम्हारा vi पॉजिटिव आ रहा था। मैंने बताया था ना कि तुम्हें दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच के ज़ीरो काउंट करने हैं, तो वो काउंट करने हैं, तो वो इस तरीके से हो जाएंगे। सो यू कुड रन दी टेस्ट केसेस मैनुअली करके देख लेना ताकि तुम्हें समझ आ जाए, एंड दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ एन, कि तुम पीछे से ही चल रहे हो। So now let's move towards the interesting problem, which is C. Okay. So C ज़्यादा समझने में तो मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स easy, but it's difficult to implement. तुम्हें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है एंड यू आर गिवन सम कॉपिंग ऑपरेशंस, जिसमें तुम पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कुछ पार्ट, लेट से एल से आर के बीच का कोई पार्ट कॉपी कर रहे हो और वो स्ट्रिंग के एंड में अपेंड कर देते हो। जैसे मार्क के अंदर तुमने 1 से 4 अपेंड किया, तो वो मार्क मार्क हो गया, फिर 5 से 7 वाला नंबर, और ये जो 5 से 7 है, ये तुम्हारी जो
जैसे 1 से 4 अटैच कर दिया था, मार्क मार्क हो गया, तो अब मार्क मार्क में से 5 से 7 वाली इंडेक्स, क्योंकि 5 से 7 इंडेक्स मार्क में तो है ही नहीं। तो ये इस तरीके से कुछ चल रहा है और तुम्हें बताना है कि कौन सी पोजीशन, कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है इन इन पोजीशंस पे फाइनल स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। सो इफ़ यू आर टिल दिस पॉइंट विद मी हियर, सो अच्छे से सुनना इस प्रॉब्लम को, लाइक इट वाज वेरी न्यू टू मी। सो 4 5 7, I am writing out the test case, and so 1 10 12, these are your, तुम्हें फाइनल चाहिए आंसर, ये तुम्हारी स्ट्रिंग ऐसे। ठीक है, तो तुम पहले मैं, अगर तुम नॉर्मली इस चीज़ को ये सोच पाओ कि जैसे तुम्हारी ये मार्क है, उसके बाद तुम्हारा ये मार्क, लेट मी टेक सम अदर कैरेक्टर, उसके बाद ये मार्क और ये 5 से 7, मतलब मार्क मार्क, ये हो जाएगी। इस ऑपरेशन के बाद ये सारी 3 4 5 6 7 8 ये सब कॉपी हो जाएगा। तो ये जो भी है, इसके बाद ये आ जाएगा। तब तुम्हें जैसे फर्स्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट तो तुम्हें मार्क में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारी n से छोटी है। n इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब तुम 10 को देखो, तो n तो तुम्हारा 4 है, ये यहाँ से भी 4 आ गया, तो मतलब ये इस वाली स्ट्रिंग, जब तुम ये वाला ऑपरेशन कर लोगे तो जो उसके बाद स्ट्रिंग बनेगी उसमें ये 10th वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये 10th वाला कैरेक्टर जहाँ से भी आया होगा, ये तुमने रेप्लिकेट ही तो किया है, तो तुमने ये 5 प्लस 2 वाले नंबर को रेप्लिकेट करा है, जहाँ से भी वही होगा, ये 7th कैरेक्टर ही होगा। मैं दोबारा से समझाता हूँ ये चीज़, लाइक दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब जैसे तुम्हारा ये मार्क मार्क है इस टाइम पर, तुम जब ये वाला ऑपरेशन करोगे, सो इट वुड बी मार्क मार्क एंड मार्क। तुम्हें चाहिए 10th वाला। ठीक है, तो 10th वाला तुम्हें पता चल रहा है कि ये ऑपरेशन जब तुम करोगे तब आएगा, और जब तुम ये वाला ऑपरेशन करोगे और वो इससे बड़ा है, ठीक है, वो इस वाली लेंथ से बड़ा है, तभी तो वो इस वाले में आया। तब इस वाली लेंथ से अगर वो बड़ा है, तो फिर वो यहीं पर ही तो आएगा ऑपरेशन, लाइक इट वुड बी, मतलब वो 8 प्लस समथिंग 2 है, जैसे वो 10 है। तो अब जैसे तुमने जब रेप्लिकेट करोगे तुम उसे, तो तुम 7th वाली कैरेक्टर को जहाँ से तुमने रेप्लिकेट किया होगा, क्योंकि 5 से 7 है ना, तो 5 से 7 के बीच में, लाइक 5 प्लस 2 माइनस 1, लाइक 6 कैरेक्टर जहाँ से भी तुमने रेप्लिकेट किया होगा, वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। फिर तुम दोबारा से अब इस वाली दोबारा से चेक करोगे कि 6 कैरेक्टर तुमने कहाँ से रेप्लिकेट किया था। तो अब 6 के लिए तुम चेक करोगे कि n से तो छोटा हुआ नहीं, तो अब वो इस वाले में चेक करेगा। सो अब इस वाले में जब वो चेक करेगा, सो 6 तुम्हारी ये सेकंड वैल्यू पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 से लेके 4, तो मतलब 1 प्लस 2 माइनस 1, मतलब सेकंड कैरेक्टर विच इज़ ए, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुम रेप्लिकेट कर रहे हो कि 1 से लेके 4 तक की तुमने यहाँ रेप्लिकेट करी है। तो तुम अगर ये चेक कर लो कि ये वाला कैरेक्टर कौन से पोजीशन पर होगा उस वाली बची हुई स्ट्रिंग में, तो तुम अपना आंसर निकाल लोगे, ना कि पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करे बगैर। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। सो यही था इसमें। नाउ आई विल शो यू कि आ, कि मैंने किया गया है कोड में। कोड से और क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्टली लाइक NCX ये सब इनपुट ले लिया, एक मैंने मैप बनाया है। मैप के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा हूँ लेंथ्स का। सो एन एन तो है ही हमारा, उसके बाद जैसे अगला आया था हमारा ये 4 से 1, सो इट वुड बी n+4। ऐसे ही ये मैं स्टोर करता जा रहा हूँ मैप के अंदर, और इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सी है, कौन से ऑपरेशन पर आया था, क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए ना इनकी, एल वाली, ताकि मैं पूरी स्ट्रिंग में पीछे से सर्च कर सकूँ। तो मैंने वेक्टर के अंदर पुश कर दिया, सम को बढ़ा दिया, ई सम को इंडेक्स के इक्वल कर दिया, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया। इंडेक्स मैंने ऑपरेशन स्टोर करने के लिए लिए।
अब अगर मेरा k इज़ लेस देन इक्वल टू n देन आई एम प्रिंटिंग इट आउट, सी आउट एस ऑफ k माइनस वन, एल्स मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ये रिकर्सिव फंक्शन मैंने लिखा है। सो फर्स्टली मैंने आइटरेटर से लोअर बाउंड निकाला उस नंबर का, जैसा कि मैंने अभी समझाया भी था। ठीक है, इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू n देन यहाँ पे भी मैंने ये कंडीशन रख दी, इफ़ आइटरेटर इज़ इक्वल टू e डॉट n, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी था वो स्ट्रिंग n लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसी में प्रेजेंट होगा। ये दोनों रिडंडेंसी हैं, बट मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने दोनों ही लिख दी। एंड एल्स लाइक इफ आइटरेटर इज बिगिन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ही है आइटरेटर, सो मतलब क्या होगा कि पीछे n कैरेक्टर्स पड़े होंगे, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। मैंने आइटरेटर सेकंड निकाल लिया, विच वुड बी द इंडेक्स, कि कौन सा नंबर का ऑपरेशन है वो मेरे को ऑपरेशन आ गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने जे ऑफ फर्स्ट माइनस वन करके के में ऐड कर दिया। अब मेरे को उतने पार्ट में के ढूंढना है, अब मेरे को के ढूंढना है बस इस पूरे रिकर्सिव फंक्शन से। सिमिलरली मैंने इसके लिए यही किया, बट इसमें ये था सिंपली कि मैंने जो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर तो एन किया था, बट यहाँ पर मैं प्रीवियस आइटरेटर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा। प्रीवियस मेरा जो सम पड़ा था उसको सब्ट्रैक्ट करके ये सॉल्व करता हूँ। तो यही था इसमें, एंड आई कुड रन दिस टेस्ट केस ताकि तुम्हें समझ आ जाए। आई विल शो यू। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यू विल नीड टू थिंक अ लिटिल बिट टू सॉल्व दिस आउट। लेट्स से इट्स मार्क। ये है, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी सेट होगा उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर लूँगा, मैं उसके अंदर स्टोर करूँगा 4 प्लस 8 प्लस 11, ये मेरा स्टोर हो जाएगा सेट के अंदर। एस टी सेट है मेरा। फर्स्ट के लिए आएगा तो ये तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, क्या एम प्रिंट हो जाएगा इस केस में। अब 10 के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग 1 4 भी पड़ा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पड़ी होगी, इंडेक्स का मतलब वही, फिर मैं वेक्टर से उस इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ये पड़ा होगा। ठीक है, अब तुम 10 के लिए सर्च करोगे, तो 10 के लिए तुम्हारा लोअर बाउंड क्या आएगा, वो 11 आएगा, ये आएगा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड इज 10 से इक्वल या बड़ा, तो 10 से इक्वल बड़ा तो 11 ही है। सो you will search, you will subtract this 8 from this 10, so 10 minus 8 would be 2. Then you will add this 3 minus 1. I guess I did store the values wrong. It should be 8, it should be 11, and it should be 8 plus 3. Let me take this, draw this vector again. मैंने स्टोरेज जो की है वो n से की है, so it would be n plus 4. So n plus 4 would be 8, 5 6 7 11 and 8 16 17. So these are the values corresponding the set. ठीक है, अब तुम ये फाइंड करो कि इसका लोअर बाउंड क्या है, वो निकल के आएगा 11। सो 11 में से तुम 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुम्हें इतनी वैल्यूज़ तो नहीं चाहिए, थर्ड वैल्यू चाहिए तुम्हें, जिस और थर्ड वैल्यू कहाँ से, अगर तुम 5 से 7 रेप्लिकेट किया है तुमने इसके लिए, सो इट वुड बी 5 प्लस 3 जो भी रेप्लिकेट हुआ हो, सो तुम्हें 8 वैल्यू चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, अब तुम एट्थ वैल्यू कहाँ से निकालोगे, एट्थ वैल्यू तुम इसका लोअर बाउंड निकालोगे, सो इट वुड कम आउट टू बी दिस, एंड देन यू विल सर्च फॉर दी, फिर तुम क्या सर्च, तुम 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आइटरेटिव बिगन वैली कंडीशन आ गई, एंड देन यू विल ऐड 1 माइनस 1। ठीक है, आई थिंक आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, सो और 11 माइनस 8 3, एंड 3 के अंदर तुम 5 प्लस 4 7 ऐड करते हैं, क्योंकि 5 6 7 एंड तुम्हें थर्ड पोजीशन का चाहिए एलिमेंट, सो यू विल नीड 7। ज़ीरो पोजीशन का चाहिए होता तो 5 होता, सो उसी हिसाब से वो ऐड कर रहे हैं, तो 7 यहाँ से आ गया तुम्हारा वैल्यू, और 7 में से तुमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड देन तुमने पोजीशन 1 माइनस 1 ऐड कर दी, सो इट वुड टर्न आउट टू बी 3। अब तुम्हें थर्ड पोजीशन कौन सी यहाँ पे आ रहा है, हाँ लेट्स सी अगेन देखते हैं 12 के लिए, ये थोड़ा मेसअप हो गया, आई विल रिमूव दिस आउट।
आई रिमूव दिस थिंग आउट। अब तुम 12 के लिए देखो, 12 के लिए तुम्हारा, आई चेंज द कलर टू 12 के लिए तुम्हारा लोअर बाउंड 17 आ गया। 12 के लिए अगर तुम्हारा लोअर बाउंड 17 आ गया, तब तुम 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये 11 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे प्लस 3 माइनस 1 ऐड कर दोगे। सो 3 माइनस 1 ऐड कर दोगे, सो इट वुड बी 1 प्लस 2 3। तो तुम्हें अब थर्ड वैल्यू चाहिए, थर्ड के चाहिए। तो अब थर्ड के तो तुम्हारा यहाँ पर कहीं है ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो थर्ड वैल्यू तो तुम्हारा प्रेजेंट है ही नहीं, तो तुम्हें बस ये आर प्रिंट कर दोगे तुम इस केस में और ख़त्म हो जाएगा। तो आई गेस ये समझ आ गया होगा ये एम ए आर में जो भी था। तो थर्ड वैल्यू जैसे ही तुम्हारा वो आइट्रेटर लेस देन के हो जाता है, तब तुम्हारी सॉर्टेड हो जाती है। एक और केस देख लेते हैं, ताकि अब लेट्स से क्रीमी जो भी है वो, आई थिंक लाइक इट्स क्वाइट टिपिकल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि तुम जो भी, जैसे अगर तुमने जैसे यहाँ तुम्हें 12th कैरेक्टर चाहिए, तो 12th के बाद अगर तुमने ये 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब तुम्हें बस एक कैरेक्टर जहाँ से भी वो रेप्लिकेट हुआ है 3 से 8, तो फर्स्ट कैरेक्टर वुड बी 3। तो तुम्हें बस थर्ड कैरेक्टर ढूंढना है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अगर यहाँ से लेट्स से सेकंड